Hello everyone, you are now welcome to our YouTube channel CA Sansar. I am CA Gaurav Bhamri and I am associate professor in Dronacharya Academy. And today my topic is new rules for input tax credit under GST. एक्चुअली ये जो टॉपिक है सबके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप एंटरप्रेन्योर हैं, चाहे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, चाहे आप एडवोकेट हैं. Everybody has to know about this topic because ITEC is the main design of GST. Input tax credit ITC means the amount of tax paid on purchase of input goods, input services, and capital goods, and includes tax paid under reverse charges. Then at the time of paying tax on input, you can reduce the tax you have already paid on inputs and pay the balance amount. This mechanism is called utilization of input tax credit. Due to this mechanism, input tax credit is the backbone of GST design because these provisions of ITC makes GST a value-added tax, that is collection of tax at all points after allowing credit for inputs. Now question is how? कैसे हम ये आईटीसी ले सकते हैं, क्योंकि आजकल आईटीसी के रूल्स बड़े कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं और कुछ न्यू रूल्स आ गए हैं. तो हम आज उस न्यू रूल्स के बारे में बात करने जा रहे हैं. सेक्शंस एंड न्यू रूल्स टू कंसीडर. सेक्शन 16. फर्स्टली सेक्शन 16 हमें अच्छी तरह पता होना चाहिए कि आईटीसी लेने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज सेक्शन 16 ऑफ जीएसटी. सेक्शन 16(4) which is in the new rules, very complicated and we have to know about it. Section 17(5), section rule 36(4), rule 42 and 43, rule 86(a). Today we will discuss all these sections and all these rules and something else about GST. Firstly, section 16. What is section 16? ITC eligibility and conditions for smooth selling of business. ये जो सेक्शन 16 है प्रॉपर आईटीसी के लिए बनाया गया है. सेक्शन 16(1) of CGST Act 2017 which shows entitled to take input tax credit, which tells about certain conditions and restrictions, which shows credit is to be availed in the manner specified in section 49 of the CGST Act. मतलब सेक्शन 49 के अंदर जो मैनर स्पेसिफाइड है आपको उसके अकॉर्डिंग ही क्रेडिट मिल सकता है. देन अवेलेबल फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड ऑल सर्विसेज, मतलब आपको ये अवेलेबल है सिर्फ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए. सेक्शन 16(2) of the CGST Act which shows restricted taxable persons shall not be entitled to the credit of any input tax in respect of any supply of goods or and services unless following conditions are satisfied. Section 16(2) position of document, मतलब आपके पास documentation means bill, ability, everything you have for taking that ITC. Section 16(2)(b) receipt of goods and services. की goods and services आपके पास आनी चाहिए. अब वो नहीं हो सकता कि आप बिल काट रहे हैं, माल जा नहीं रहा, सर्विसेज हो नहीं रही हैं, बिल चल रहे हैं, अब वो होना इम्पॉसिबल हो गया है. Now section 16(2)(c) tax actually paid to the government. Sometimes क्या होता है कि बिल कट जाता है, आप टैक्स की पेमेंट दे देते हैं सप्लायर को, लेकिन वो पे नहीं करता, उसका वो टैक्स वहां पर गवर्नमेंट के पास नहीं जाता. नो दिस इज अ ट्रांसपेरेंसी कि आपको हर एक चीज पता है कि आपका टैक्स जा रहा है. अगर आप वो सामने वाला टैक्स पे करेगा तो आपको आईटीसी मिलेगा, नहीं तो आपका आईटीसी वापस हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा. सेक्शन 16(2)(d) furnishing the returns under section 39. You have to furnish your return. This is must. Now reversal of input tax credit if payment not made to the supplier within 180 days. अगर 180 days में रेसिपिएंट सप्लायर को पेमेंट नहीं करता तो देन क्या होता है, अब हम ये देखेंगे. इसके अंदर सेकंड प्रोविजन टू सेक्शन 16(2) ऑफ सीजीएसटी एक्ट ये बनाया गया है और इसके अंदर मेनली कहा गया है कि अगर 180 डेज के अंदर रेसिपिएंट सप्लायर को पेमेंट नहीं करता तो आफ्टर 100 डेज
आफ्टर 100 days ऑफ इनवॉइस बिलिंग डेट उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होना शुरू हो जाएगा जीएसटी के अंदर, और उसका इनपुट टैक्स का जो क्रेडिट मिल चुका है उसको उसकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में शो करना शुरू हो जाएगा। तो एक बहुत ही न्यू चीज अब इस जीएसटी के अंदर ये आ गई है, ये पहले भी थी, लेकिन अब इन चीज को रिजिडनेस और इसके ऊपर ट्रांसपेरेंसी पूरी रख दी गई है जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा। कंसिडरेशन फॉर सप्लाई कैन बी मेड थ्रू बुक एडजस्टमेंट। अब क्या है कि अगर आपने कंसिडरेशन कर ली, बुक एडजस्टमेंट कर ली, लेकिन पेमेंट नहीं आई, तो जो रेसिपिएंट है वो क्लेम कर सकता है या सप्लायर क्लेम कर सकता है कि सर मेरे को पेमेंट नहीं आई और मेरी जीएसटी तो स्टैंड नहीं करे इन जीएसटी एक्ट 2। तो आफ्टर दैट वो जो सा जीएसटी आ रहा है उसकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में शो करना शुरू कर देगा। रिवर्सल ऑफ टैक्स क्रेडिट इफ पार्शियल पेमेंट इज मेड। अगर 50% पेमेंट हुई है विद इन 180 डेज, 50% नहीं हुई, 90% हुई है, 10% नहीं हुई, आफ्टर दैट भी वो जो टैक्स है वो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में शो करना शुरू कर देगा। अगर आप जीएसटीआर 2 में वो शो करते हैं, और वो करना पड़ेगा आपको। रीअवेलमेंट ऑफ क्रेडिट, अगर आप 180 डेज के बाद जो रेसिपिएंट है वो पेमेंट कर देता है, तो वो पेमेंट कर देता है तो देन उसको रीअवेलमेंट ऑफ क्रेडिट मिल जाएगा आईटीसी में। ये भी अब एक न्यू प्रोविजन आ गया है। फर्स्ट प्रोविजन टू रूल 37(1) of CGST rules 2017 case where GST is payable without consideration। अब क्या होता है कि कई बार रेसिपिएंट पेमेंट कर देता है लेकिन एंट्री ऑन बुक्स शो नहीं कर रही होती, तो इन दैट पोजीशन उसको अब ये चांस मिल गया कि इफ ही प्रूव्ड इट देन देयर इज नो प्रॉब्लम फॉर हिम। अगर कहीं पर भी कोई डिस्प्यूट आ जाता है तो it's easy for them to solve that with the help of GST। Second provision to rule 37(1) of CGST, अगर ऐसा हो जाता है कि रेसिपिएंट सप्लायर को पेमेंट कर देता है तो आफ्टर दैट उसको यहां पर कोई भी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी नहीं शो करेगी। तो ये भी एक बहुत अच्छा प्रोविजन है। अब हम देखते हैं रूल 37(1) of CGST and SGST rule 2017, procedure for reversal of input tax credit in case of non-payment of consideration। अब हमने करना क्या है, हमने GSTR 2 भरनी है। The unpaid value of supply along with the tax payable thereon within 180 days, recipient shall furnish the details of such supply and the amount of input tax credit availed of it from GSTR 2 for the month immediately following the period of 180 days from the date of issue of invoice। उसको GSTR 2 भरनी है। जब आप GSTR 2 भरेंगे, रेसिपिएंट भरेगा, तो दे विल शो टू द जीएसटी डिपार्टमेंट दैट कि मेरी 180 के अंदर डेज के अंदर पेमेंट नहीं आई, एंड दे टेक एक्शन अबाउट इट। रूल 37(2) of CGST and SGST rules 2017 also shows that period for interest calculation। अब पीरियड ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेशन क्या रहेगा, वही जो हमने पहले बताया आपको, 100 डेज के बाद आपकी कैलकुलेशन होगी और रेट ऑफ इंटरेस्ट एज पर 15(1) ऑफ जीएसटी लिया जाएगा। द टाइम लिमिट फॉर रीवेलमेंट ऑफ क्रेडिट, टाइम लिमिट क्या है, आप पेमेंट तो कर रहे हैं लेकिन अगर आप 1 साल बाद पेमेंट कर रहे हैं तो वो पेमेंट कंसीडर नहीं की जाएगी, वो आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। अगर आप वो पेमेंट विद इन 1 ईयर करते हैं तो तभी आपको उसका आईटीसी अवेल होगा। अब हमारे माइंड में एक क्वेरी आती है, व्हाट इज द न्यू रूल्स प्रैक्टिकली एक्सपोज, बिकॉज दीज रूल्स एग्जिस्टिंग इन द जीएसटी एक्ट, सम आर एडेड, बट व्हाट इज देयर प्रैक्टिकल एक्सपोज, वो आप प्रैक्टिकली आपको क्या शो करते हैं और उसके अंदर क्या कॉम्प्लिकेशन है। तो लेट्स सी complication in availing GST ITC। It is pathetic that now GST return and to take ITC is very difficult for fraudulent, but not for a real person, not for a real businessman, not for a real entrepreneur। So for taking this ITC in GST, you have to do all these things। Firstly, you have to pay GST to the supplier, जो आप normally करते ही हैं। Secondly,
प्रे सप्लायर फाइल GSTR1। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका GSTR1 जो सा सप्लायर है वो आपका GSTR1 तो भर ही दे भाई ऑन द टाइम, बिकॉज अगर वो ऑन द टाइम नहीं भरता तो आपको आईटीसी नहीं मिलने वाला। See section 16. We have to see, we have to know about the section 16 because अगर हमें section 16 के बारे में पता होगा तभी हम इसके ऊपर पूरा फोकस कर पाएंगे। तो हमें section 16 की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। मेनली सेक्शन 16(4) अब न्यू इंक्लूजन है, ये न्यू इंक्लूजन है, हमें समझना बहुत जरूरी है इसके बारे में कि सेक्शन 16(4) क्या है। No ODC can be availed after the due date of filing of the return under section 39. सेक्शन 39 की जो डेट्स हैं उस हिसाब से आपकी ड्यू डेट के अंदर आपकी आईटी आपकी जो सी रिटर्न है वो फाइल होनी चाहिए, चाहे वो GSTR1 है चाहे वो GSTR3 भी है। आपकी रिटर्न सप्लायर की और रेसिपिएंट की विद इन ड्यू डेट्स फाइल होनी चाहिए, तभी आप आईटीएस क्लेम कर सकते हैं, आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। अगर आप फाइल नहीं कर पाते देन देयर इज नो चांस फॉर इट। Section 17(5). What is section 17(5)? Certain input services such as health services, life insurance and health insurance, renting on hiring of motor vehicles which are under the blocked category. अब ये जो सी सारी सर्विसेज हैं, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, रेंटिंग, हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स, सबको ब्लॉक कर दिया गया। अगर आप इसके लिए क्लेम करते हैं तो आप कभी भी एक्सपेक्ट ना करें कि आपको आईटीसी मिल जाएगा, वो आपका आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में शो करना शुरू कर देगा। अदर कॉम्प्लिकेशंस, रिकंसाइल GSTR 2A and 2B. Firstly, we have to reconcile our GSTR 2A and GSTR 2B before filing our 3B. Then check restriction rules 36(4). This is the new one. ITC only to the extent of 5% of the eligible credit available in GSTR 2A. अब ये चीज जो सी बिल्कुल न्यूली इंक्लूड की गई है, क्योंकि पहले ये 15% थी, फिर आई थिंक 10 आई और अब ये 5% हो गई है कि आपकी GSTR 2A में जो भी क्रेडिट अवेलेबल है उसका सिर्फ और सिर्फ 5% ही अवेल कर सकते हैं। दिस इज द न्यू वन। एंड देन अप्लाई रूल 42. You have to apply it. Then you have to take this one, that common credit in ITC on input partly used for the business and partly used for the exempt suppliers or personal use. आपको जो भी आईटीसी है आपको 50% ही बिजनेस यूज में ले सकते हैं, 50% को आपको एग्जेम्प्ट सप्लाईज और पर्सनल यूज में लेना पड़ेगा। अब ये भी रिस्ट्रिक्शन जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से आप पे लगा दी गई है। नो मोर कॉम्प्लिकेशंस, अप्लाई रूल 43. You have to take knowledge of rule 43. The ITC is in relation to capital goods that have been used exclusively for non-business purposes or for market exempt outward supply. अब क्या है कि जो आपके कैपिटल गुड्स के ऊपर आईटीसी है वो सिर्फ आप नॉन बिजनेस पर्पसेस एंड मार्केट एग्जेम्प्ट आउटवर्ड सप्लाईज में यूज कर सकते हैं। आप नॉर्मल परचेज पे उसको नॉर्मल सेल पे यूज नहीं कर सकते। तो ये भी एक कॉम्प्लिकेशन जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ न्यूली लगा दी गई है। देन सी रूल 86A. Under 86A, credit of input tax available in the electronic credit ledger has been fraudulently availed by a commissioner. देखो ये पावर्स पहले कमिश्नर को पहले भी थी, जब वैल्यू एडेड स्कीम थी, जब वैल्यू टैक्स था, वैट, जब ये जीएसटी आया और नाउ भी। लेकिन ये इतनी ज्यादा पावर्स पहले कमिश्नर एंड असिस्टेंट कमिश्नर को नहीं दी गई थी। अब इस एक्ट के द्वारा फुल पावर्स दे दी गई हैं कि अगर सप्लायर का बिल अप टू द मार्क नहीं है, अगर आपके पास उस बिल के अंदर अमाउंट जो शो कर रही है, इवन वो रेट है, इवन वो क्वांटिटी है, अगर वो अप टू द मार्क नहीं है तो कमिश्नर है पावर टू रिवर्स दैट आईटीसी, और वो कभी डिसअलाउड भी कर सकता है, उसको फ्रॉडलेंट भी शो कर सकता है
अगर उसको ये लगता है कि सप्लायर का जो सा इंफ्रास्ट्रक्चर है प्रॉपर प्लेस पे नहीं है, उसके पास उतनी मशीनरी नहीं है, और अगर उसको ये लगता है कि जो क्लेम कर रहा है आईटीसी जो रेसिपिएंट है उसने प्रॉपर पेमेंट नहीं कर रखी, तो in any situation they have power to disallow that ITC even at that time। अगर ITC काफी टाइम तक वहां पर शो कर रहा है आपकी स्क्रीन पे और आप उसको यूज नहीं कर रहे, तो वो भी डिसअलाउड हो सकता है। अब ये पावर्स कमिश्नर के हाथ में आ गई है। So after all this complication, anything left? No one. This is so complicated, but this is so feasible also, because when we habitate for it, it is very easy. It makes our work very easy, and there is no chance for fraudulent sellers and fraudulent purchasers in the market. And after that, take credit in 3B form. Now we take a look of pros and cons of these new rules. Transparency, normal. ट्रांसपेरेंसी तो भाई बढ़ ही रही है। अगर आप इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस लगा रहे हैं, अगर ये गवर्नमेंट जीएसटी को इतना कॉम्प्लिकेटेड कर रही है, तो उसका मेन बेनिफिट बायर्स एंड सप्लायर्स को है और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को भी है और एवरी इंस्टीट्यूशन को है कि ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा है। आप किसी भी चीज को ऑन स्क्रीन अपने लैपटॉप में अपने मोबाइल पे कभी भी जाके दे सकते हैं और बड़ी जल्दी चेकिंग हो रही है, क्योंकि विद इन डेज, विद इन मंथ्स आपको हर एक चीज की अवेलेबिलिटी हो रही है। पहले क्या होता था कि 2-2 साल बाद केसेस फाइल होते थे, उसके बाद पता लगता था कि अरे सामने वाला डिफॉल्ट होता था, एट दैट टाइम वी हैव टू पे दैट टैक्स विद इंटरेस्ट। बट नाउ एवरीथिंग इज इन ओवर हैंड। विद इन 2 मंथ्स हमें पता लग जाता है कि हमारी ये चीज ठीक नहीं है, हमारे पास नोटिस आ जाता है, हमारी जीएसटी पोर्टल पे शो कर जाता है, रेड मार्क शो कर जाता है नोटिस का, तो देन हम ये ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा बढ़ी है। कॉम्प्लिकेशंस, अब प्रॉन्स एंड द कॉन्स होने स्वाभाविक हैं, इट इंटरेस्टिंग, देन कॉम्प्लिकेशंस आल्सो है, लेकिन ये कॉम्प्लिकेशंस भी मीठे हैं, ये कॉम्प्लिकेशंस भी इस चीज को बहुत इजी कर रहे हैं। तो दिस इज आल्सो ए फॉर आवर बेटरमेंट एंड फिजिबिलिटी, दिस इज द मेन पॉइंट। फिजिबिलिटी इतनी इंक्रीज हो गई है कि हम हर चीज को, आज ऐसा टाइम है कि आज कोई भी छोटा बच्चा भी घर में बैठ के जीएसटीआर फिल कर सकता है, बिकॉज ऑल इन द लैपटॉप कीज, ऑल इन द मोबाइल, so feasibility is increased so much. At last, thanks. Any questions, any queries, you can find me at cagorav34@gmail.com. हमारे सीए संसार चैनल में आपके लिए हम हमेशा अच्छे वीडियो लाते रहते हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज शेयर एंड लाइक दिस चैनल, प्लीज शेयर एंड लाइक दिस यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।